Hello, guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. And today, this video is especially for those students who are going to enter their 11th and 12th standard. And I wish someone would have shown me this video when I was in 11th because I would have saved a lot of time. I thought that these years are just going to be about studies, getting marks, but honestly, these 2 years have changed me as a person completely. Like how I was in my 10th standard and how I am right now in my 12th. Those two are totally different personalities, different perspectives. And I know ये एक phase होता है हर किसी की life का, but I wish someone would have told me कि ये जो भी हो रहा है, it's okay. So the first point is consistency matters more than motivation. This is what I'm saying because आई रिमेंबर ये 2 साल मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने हमें कितना मोटिवेट किया। हर 3 महीना हमें मोटिवेट करते थे वो लोग। दे यूज्ड टू कॉल अस ऑन गूगल मीट, दे यूज्ड टू कॉल अस एट अ सर्टेन प्लेस एंड दे यूज्ड टू मोटिवेट अस फॉर स्टडिंग। बट यू वोंट फील मोटिवेटेड एवरी डे, राइट? तुम एक दिन मोटिवेट होकर तुम पढ़ने लग जाओ, उससे कुछ नहीं होता। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट। देयर विल बी डेज जहाँ तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी होगी बट तुम्हें पढ़ना होगा। देयर विल बी डेज जहाँ तुम बीमार होंगे बट you will have to study. You cannot take a break. So the second point is 11th syllabus shock is real. I just know मेरा एक phase आया था जब मेरा 11th स्टैंडर्ड मैंने शुरू किया था। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज सो चिल। आई वाज लाइक कि यार ये होता है जेई, ये तो बहुत ईजी होता है यार। बिकॉज स्टार्टिंग में एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट इज टीचिंग यू द बेसिक्स ऑफ जेई एंड दे आर नॉट लिटरली टीचिंग यू द syllabus of जेई. So once you end that phase and once you really enter into a phase जहाँ तुम्हें actual जेई syllabus पढ़ाया जाता है, it is such a shocker. मुझे याद है 2 महीने, आई रिमेंबर 2 महीने तो मैं completely ही I was I was in a state जहाँ मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था. It was so difficult for me to understand and comprehend. ऐसा नहीं कि भाई दिमाग नहीं था, it's just that the things were too new for me. And honestly ये सबके साथ होता है. That time I thought that I'm dumb, I'm not meant for this stream, but then I realized कि नहीं, ये सबके साथ होता है. So it is also going to happen with you if you are taken any competitive exams like JEE and NEET. 11th standard syllabus is a shock. Once you cross certain things, certain basics, after that you will really understand that जो syllabus तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ें तुम्हें पढ़ाई जा रही है, वो तुम्हें कभी नहीं पढ़ी है. And it's better that you get out of that phase as early as you can and move forward and understand things. मेहनत लगेगी यार, वो अगर तुम उस चंक में मेहनत कर लेते हो ना, it would be really easy for you in 12th standard. So yeah, 11th syllabus is something which is very important and everyone should, not leave it just because you're not able to understand. My fourth point is going to be that not every friendship survives after your 12th standard or even 11th standard. प्लीज एक बात समझो, दिस इज नॉट योर स्कूल. यू हैव एंटर्ड अ डिफरेंट फेज ऑफ योर लाइफ. यू हैव एंटर्ड अ फेज ऑफ योर लाइफ जहाँ तुम काफ़ी अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, जो अलग अलग स्कूल्स से आए हैं, अलग अलग कल्चर्स से आए हैं. एंड यू मेकिंग बेस्ट फ्रेंड्स और यू स्पेंडिंग टाइम विद देम, पूरा पूरा दिन तुम उनके साथ चिल कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो. सो प्लीज़ समझो कि तुम एक लॉस में हो. यू आर रियली गोइंग टू बी एट अ लॉस. And if you're someone who's determined into getting into an IIT, NIT, or getting a good percentile in JEE, please समझो दोस्ती यारियों में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो. आई हैव बीन एट दैट प्लेस फॉर लाइक अ लॉन्ग टाइम एंड ये सब जब मेरे साथ ख़त्म हुआ, व्हेन दोज फ्रेंडशिप ब्रेक्स एंड देन यू रियलाइज हाउ मच टाइम यू हैव लॉस्ट, यू विल रियली रिग्रेट दैट. सो प्लीज़ लोगों को कम टाइम दो, दोस्तों को कम टाइम दो, उतना ही रखो जितना तुम्हें काम आ रहा है. don't get involved in their personal lives or personal dramas because I know there are a lot of dramas going on at that age. um, जो काफ़ी यूजलेस होता है. दिस इज़ मी एट एज ऑफ 18. आई एम टेलिंग कि 16-17 साल की उम्र में जो हम कर रहे होते हैं वो बहुत ही फालतू होता है. एंड प्लीज़ ज़्यादा मत टाइम वेस्ट करो लोगों पे.
If you're someone like me who has always been a social butterfly, extrovert, who like making friends, please change कर दो अपने आप को. Don't compare yourself with the toppers. And क्योंकि I still remember मैं अपने आप को toppers के साथ compare करती थी with just 1 or 2 months of hard work. Those people are the ones जो day one से पढ़ रहे हैं, and तुम्हारा 1-2 महीने से पढ़ने से अगर तुम उनके marks तक आ जाओ, ऐसा नहीं होता है. So if you're someone, जैसे late realize हुआ है कि you need marks, and नहीं आ रहे मार्क्स, तो प्लीज़ समझो ये बात कि विद टाइम मार्क्स विल इंक्रीज, एंड मार्क्स आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज लाइक बूम. ऐसा नहीं होता. सो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद द टॉपर्स. So the fifth point is going to be the love life. Okay, this is a story I wanted to share with you guys. I remember February month, I had my 12th boards and मैं मेरी classes गई थी. So we have this library in at the at the terrace. So all my juniors were sitting there with their boyfriends and girlfriends, and I could literally see myself at that place a year ago. I did not date someone, but I could really sense that feeling कि मैं भी उन चीज़ों से गुजरी हूँ इसी मोमेंट पे, इसी टाइम पे. दे वर, एंड आई वांटेड टू गो एंड टेल देम कि यार मत करो ये सब, पढ़ लो, बट इट्स ओके, एवरीबडी हैज़ देयर जर्नी एंड दे हैव टू लर्न things on their own. But my fifth point is going to be that don't let your crushes or the validation you're getting from the opposite gender distract you. I know इस टाइम पे the hormones are high and we all are, हमें ऐसा लगता है कि भाई यही है वो इंसान, यही है हमारा दूल्हा राजा, प्यार फॉर लाइफ. बट प्लीज समझो ऐसा कुछ नहीं होता. दिस इज ऑल जस्ट हार्मोनल dance going within you, and there is no future for it. I'm saying this because I have seen people around me. Myself, I had a crush on someone, and it really turned into an obsession unknowingly. So this is to all the people who are going to enter the 11th and 12th standard. Crushes आना normal है and सबको आता है, but please समझो कि ये बात कि उस चीज़ को इतना दिमाग पे हावी मत आने दो कि it will distract you from your studies. Please don't do that. And your dating life is of course your personal life, but I wanted to just give a kind of warning to all the people there out. If you are really serious about JE or any kind of competitive exam you're giving, मत करो डेट, क्योंकि तुम्हारा एट द एंड ऑफ द डे टाइम वेस्ट ही होने वाला है. दिस इज टू द पीपल हु कैन नॉट मल्टी टास्क. है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेट भी कर लेते हैं, प्यार आशिकी भी कर लेते हैं, मज़े भी कर लेते हैं, और जेई भी उनका हो जाता है. बट दिस इज टू द पीपल जो मेरे जैसे है, जो मल्टी टास्क नहीं कर सकते. इफ आई वुड एवर डेट समवन, आई वुड बी कम्प्लीटली इन टू दैट पर्सन. मैं आजू बाजू कुछ सोचती नहीं हूँ, मेरा दिमाग कहीं आजू बाजू लगता ही नहीं है. सो इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट डेट. प्लीज़ डोंट डेट गाइस, दूर रहो इन चीज़ों से. कॉलेज लाइफ है आगे तुम्हारी, 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज, यू आर रियली गोइंग टू एन्जॉय इट. तब जितना डेट करना कर लेना, बट प्लीज़ ये 2 साल पढ़ाई पे लगाओ, दिमाग अपना पढ़ाई पे लगाओ. प्यार आशिकी के लिए टाइम नहीं है. एंड प्लीज़ प्लीज़ डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ for your little male validation you're getting somewhere. So the next point is gossips. I know ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे गॉसिप करना नहीं पसंद. आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम. मुझे भी गॉसिप करना बहुत पसंद था. कौन किसको डेट कर रहा है, किसकी दोस्ती किससे टूटी, किसका क्या चल रहा है, all this bullshit. I have done all of it, and I can clearly say that it was a huge waste of time. प्लीज़ समझो ये टाइम आंटी बनने का नहीं है, ये टाइम पढ़ने का है, ये टाइम एक अच्छा डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बनने का है. एंड गॉसिप्स, whatever gossips you are doing right now, I don't know, but please समझो ये बात कि it's not fun. It is not fun. It is totally time pass. Please don't get too much involved into it with your friends, and because we usually bond with friends through gossips, and I was also one of them, so I know that कि gossips आपका कितना time waste करते हैं. So also this is something which I want to tell all of you कि लोगों की life में ज़्यादा मत ध्यान दो, because whatever everyone is doing apart from study is just time pass. तो प्लीज़ ये बात समझो, और अगर तुम्हें अपना टाइम सेव करना है, प्लीज़ stay away from all the gossips you are doing. So the next point is dramas. Oh my god, I remember मेरी क्लास में इतने ड्रामे हुए हैं, लोग रोए हैं, लोगों के साथ लोगों के एक दूसरे के साथ झगड़े हुए हैं, and a lot of dramas keeps on going.
सो लाइक बहुत सारे ड्रामाज हुए मेरी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में, मेरे खुद के साथ इतने ड्रामाज हुए. एंड आई थिंक इफ आई कम टू अ कंक्लूजन राइट नाउ कि ऐसा सब क्यों हुआ मेरे साथ या इनफैक्ट दूसरे लोगों के साथ, द मेन थिंग आई वॉन्टेड टू टेल एवरी वन ऑफ यू इज, please stop telling everything about yourself to others. Your secrets, your feelings, your emotions, your crushes, everything has to stay with you. डोंट, अगर तुम्हारा बहुत कोई क्लोज इंसान होगा जो तुम्हारे डेस्क में तुम्हारे डेस्क के तुम्हारे साथ बैठता है डेस्क पे, उन्हें भी मत बताओ. प्लीज़ समझो ये बात, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन. एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बातों बातों में चीज़ें बता देते हैं तुम्हारे बारे में जो तुम्हें नहीं बतानी होती है. आई वॉज वन ऑफ देम जो बातों बातों में चीज़ें बता देती थी, एंड आई यूज्ड टू रिग्रेट देम अ लॉट. सो प्लीज़ समझो, अपनी बातें अपनी चीज़ें लोगों को, दुनिया को मत बताओ. अगर तुम्हें बतानी है, टेल इट टू योर पेरेंट्स, टेल इट टू योर सिबलिंग्स, टेल इट टू योर स्कूल फ्रेंड जिसका तुम्हारे साथ कोई लेती देती नहीं है. But please don't share with people in your class or in your coaching center anything about whatever you are doing. Be private as you could, because this is a training ground यार. यहाँ पे अगर तुम मिस्टेक्स कर भी रहे हो ना, तुम्हें इतना फ़र्क नहीं गिरेगा जब तुम ये मिस्टेक्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके करोगे या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके करोगे, जहाँ पे पब्लिक इज़ ऑलमोस्ट वेरी ह्यूज एंड थिंग्स कैन रियली गेट बैड ओवर देयर. सो प्लीज़ समझो, जितना तुम प्राइवेट रख सकते हो अपनी लाइफ रखो. ज़्यादा अपने बारे में शेयर मत करो लोगों को, बिकॉज नो बडी इज़ इंटरेस्टेड इन यू. प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर तुम अपने आप को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो कि वाओ आई एम डेटिंग दिस गाय, वाओ आई हैव दीज फ्रेंडशिप्स एंड वाओ आई एम लर्निंग दिस लर्निंग दैट, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता. सबको एक गॉसिप चाहिए, सबको एक पॉइंट चाहिए जिस पे वो हंस पाए, एंड यू आर गिविंग देम फॉर फ्री. प्लीज़ समझो, नो बडी इज़ बॉदर्ड अबाउट यू. प्लीज़ यू हैव टू कम टू दिस टर्म्स गाइज कि तुम्हारे लिए किसको फ़र्क नहीं पड़ता. तुम्हारा डाउनफॉल हो, किसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा. वंस यू आर, तुम अगर चमक रहे हो तो तुम्हारे पास 100 मक्खियाँ आएगी तुम्हारे आजू बाजू घूमने. एंड वंस यू लूज दैट शाइन, everybody will go. So please understand that it's you at the end of the day, and और कोई भी नहीं है तुम्हारे साथ. So the next thing I want to share is a few things I did for myself during this journey was documenting my life. I always loved vlogging and making videos like this. So I used to make such videos when I felt a little bit off, I felt bad about myself, I was confused. So मैं अपने आप को document करती थी. I used to make my videos and I used to share everything to that video. In that video I used to share everything, and it kind of made me feel good because I know इधर से कहीं बात जाने नहीं वाली है. And I used to share these things with my friends, but then मेरे साथ ऐसी भी चीज़ें हुई है जहाँ पर मेरी बातें जाकर उस इंसान ने किसी और को बता दी. सो वहाँ पे भी मेरा ट्रस्ट टूट गया. सो my all personal feelings, I used to document them, and I used to listen them whenever I felt a bit good, and I used to laugh at them. So this is what I was doing basically to cheer myself up. At the end of the day, 11th standard and 12th standard is not just about studies or marks. It will really teach you about life, about friendships, about heartbreaks, about pressure, and most importantly, it will teach you about yourself. So, and somehow I know you will survive it. Yes, guys, you all guys will survive it, and I wish you all the best for your 12th standard. Bye bye.